Now today we will begin with section 499 of the IPC. It says that whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having a reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said, except in cases hereinafter accepted, to defame that person. So first thing that you need to realize that criminal law does not differ in libel and slander. All right. In IPC, defamation is not making a difference between libel and slander as it does in torts. All right. So what is libel and slander? See, libel is a defamation through written form, and slander is a defamation through oral form. So, if something is written, published, or written in an article, written in a newspaper, written in a blog, then that would be defamation by libel for the purpose of civil law under torts. And what would be the slander? If let us suppose a person in public gathering abuses another person, then that would be slander. Alright. Or if a news broadcaster make false imputations against a person with intent that such imputations will harm the reputation of the person, then that would be covered within the definition of slander. Alright, because the imputations are by words spoken orally, then that would, for the purpose of civil law, would be called slander. You need to understand that IPC will not make such a difference. IPC is saying words either spoken, written, either signs, visible representation. Visible representation you understand by photographs, by statues, by artwork, etc. or by signs, gestures. Everything is covered. So IPC is not making a difference or subcategories of libel or slander. It is saying that if it's words spoken or written or it's by signs or visible representation, it would be covered within the definition of defamation. Now let me tell you, in English law, only libel is punishable under defamation. Alright, punishable by imprisonment under the Defamation Act 1952. But slander is not. Slander is not punishable. Slander is only relevant for civil liability, for civil compensation, but libel is covered under the criminal liability. Alright, and there is a reason English law thinks that since written form can be spread more easily and it's more permanent, hence it deserves a severe sentence, while slander is oral and not permanent. So in that situation, it can only be a ground for civil liability but not for the criminal liability. Also know one thing, that in 2006, I'm speaking in the context of United Kingdom, in 2006, in the case of Keith Smith versus Williams, it was confirmed that discussions on the internet were public enough for libel to take place. Hence, by that definition, internet blogs, comments under the internet blogs, e-newspapers are also within the definition of libel. Alright. But Indian law is not making such kinds of difference. I'm just informing you that you also need to be aware about the position of England as well. Because in exams, you will often have a short note of defamation. See, nobody asks defamation in detail. And if they do, they are primarily asking you on a very bare act level. They are not asking you in detail. So, it is a very simple section. It is not a very nuanced section. Alright. So, it is not very complex. It is very straightforward. So, we'll continue further from that. So, the explanation one reads under section 499 that it may amount to defamation to impute anything to a deceased person if the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives.
So the explanation 1 recognizes that even a dead person can be defamed. Alright, explanation 1 is recognizing that even a dead person can be defamed. And the law sees that if the imputation would harm the reputation of that person, if living, and then it sees that if the imputation is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives. Alright, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दिस इज अ रिकरिंग थीम इन 499 और आप अपनी बेयर एक्ट्स में लिख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस रिया टू बी प्रेजेंट फॉर अ पर्सन टू बी कन्विक्टेड फॉर डिफेमेशन. ठीक है, मेंस रिया होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए मेंस रिया? ये आंसर आपको 499 के फर्स्ट पैरा में ही मिल जाता है. वो कहता है कि मेक्स और पब्लिशेज एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म or knowing or having a reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is set to defame that person. ये mens rea वाला पार्ट है, ये बता रहा है क्या mens rea होना चाहिए. तो या तो intention to harm होना चाहिए reputation को, या knowing or having a reason to believe that imputation will harm. Alright, I'll continue. We go to explanation 2. It says, it may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of such. So you can understand that you can defame a person. You can defame a person, and hence, since company is an artificial person, even a company can be defamed. But entertain this thought for a while. Can a company be liable for defamation? Can a company commit the offense of defamation? The answer is yes. And the Supreme Court has recognized that even in the cases where there is a custodial sentence, even in those cases a company would be liable. Alright, defamation में custodial sentence है, 2 साल का custodial sentence है maximum. तो कंपनी ऐसे सिचुएशन में कोर्ट में यही पॉइंट लेती है कि वो क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके पास रिक्विजिट मेंस रिया नहीं है, और ऊपर से आप एक आर्टिफिशियल पर्सन को इम्प्रिजन कैसे करेंगे. तो कोर्ट इस बात में कहता है कि देखिए आपको इम्प्रिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको फ़ाइन भी लगा सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन अगर आप ये पॉइंट लेते हैं कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जिन भी ऑफेंसेस में अगर कस्टोडियल सेंटेंस दिया गया है तो क्योंकि कंपनी को आप कन्फाइन नहीं कर सकते तो कंपनी वुड बी आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ दोज ऑफेंसेस, ये एकदम गलत होगा. Supreme Court has categorically said that in Standard Chartered Bank versus Directorate of Enforcement, AIR 2005, Supreme Court, page number 2622. In this case, Supreme Court very categorically said that a company is liable to be prosecuted and punished for criminal offences as well. Supreme Court said it is correct that you cannot be sentenced to imprisonment, but when the imprisonment and fine are prescribed as punishment, the court can impose the punishment of fine which could be enforced against the company. Similarly, the similar position was recognized in Iridium India Telecom Limited versus Motorola Incorporation, 2011, volume number 1, Supreme Court cases, page number 74. Supreme Court held in this case that corporate houses can no longer claim immunity from criminal prosecution on the ground that they are not capable of possessing mens rea. The Supreme Court has recognized that even a company can commit the offense of defamation, not just tort. Civil side पे तो liable होती हैं ये लोग, लेकिन Supreme Court has recognized that you are even capable of possessing the requisite mens rea to commit the offense of defamation. Alright, then we'll continue. We read explanation 3. An imputation in form of an alternative or expressed ironically may amount to defamation. Now explanation 3, you can just write innuendo. These things are innuendo. What is an innuendo? When you express a statement which is ironical, or when you express a statement very sarcastically, that is an innuendo. Let us suppose, in fact you don't need to suppose, the illustration A is an illustration of innuendo. In this it says, A says Z is an honest man, he never stole B's watch. Alright, so the statement prima facie is very innocent. Alright, but
A's intention here is to cause it to be believed that Z did steal B's watch. This is defamation. Alright? Because here A is expressing his imputation in form of an irony. So this is a defamation. इसको innuendos भी कहते हैं. Then we come to explanation number 4. No imputation is said to harm a person's reputation unless that reputation directly or indirectly in the estimations of others, estimation of others को mark कर लीजिए, in the estimations of others lowers the moral or intellectual character of that person or lowers the character of that person in respect of his caste or his calling, or lowers the credit of that person or causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered as disgraceful. तो देखिए, रेप्यूटेशन का जो मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन का क्या ओपिनियन है अपने रेप्यूटेशन के बारे में. दैट इज इररिलेवेंट. रेप्यूटेशन का मतलब है कि दूसरों के एस्टिमेशन में उस व्यक्ति का मॉरल या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर क्या है. ठीक है. तो फॉर द पर्पस ऑफ डिफेमेशन, इम्प्यूटेशन को तभी कहा जा सकता है इट हार्म्स अ पर्सन्स रेप्यूटेशन जब वो इम्प्यूटेशन चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मॉरल या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर गिराए उस पर्सन का, वो इज़ द विक्टिम ऑफ डिफेमेशन, या उसका कैरेक्टर गिराए इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और हिज कॉलिंग, या उसका क्रेडिट गिराए मार्केट में, या ये ऐसा इम्प्यूटेशन करे in order to show that such person is diseased or his body is in a loathsome state. So in that situation, only in that situation, a person can be said to harm a person's reputation. ठीक है. तभी रेपुटेशन बहुत ज़रूरी. रेपुटेशन किसी पर्सन का ओपिनियन नहीं होता है. ठीक है. एक आदमी जो लेट अस सपोज द पर्सन हु इज़ विक्टिम ऑफ डिफेमेशन, उसका क्या ओपिनियन है अपनी रेपुटेशन के बारे में, दैट इज़ इररिलेवेंट. हिज ओपिनियन डज नॉट मैटर. ये मैटर करता है कि एस्टिमेशंस ऑफ अदर्स क्या हैं उसके बारे में. ठीक है. और क्या जो इम्प्यूटेशन किया जा रहा है, क्या वो डिफेमेशन के विक्टिम का मॉरल या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर इन एस्टिमेशन ऑफ अदर्स गिराता है या नहीं. ठीक है. दैट इज़ वेरी एसेंशियल. अभी मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर की मैं ऊपर ही ऊपर लेवल पे बात कर रहा हूँ, आपको ये सारी लाइन इंक्लूड करनी होंगी एग्जाम में. ठीक है. मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और कॉलिंग, lowers the credit of that person or causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered as disgraceful. Now let me just read some of the illustrations. अब illustration B पढ़ते हैं, ये तो पढ़ ही लिया. A is asked who stole B's watch. A points to Z intending it to be caused to be believed that Z stole B's watch. This is defamation unless it is false within one of the exception. तो ये defamation कैसे हुआ? This is a defamation by gestures. ठीक है. It is covered by the expression 499 की सेकेंड लाइन देखिएगा, by signs. Gestures की कैटेगरी में आता है, तो ये साइंस की कैटेगरी में आ गया. ठीक. Then we come to illustration C. What does it say? A draws a picture of Z running away with B's watch, intending it to be believed that Z stole B's watch. This is also defamation. ठीक है. यहाँ पे defamation कैसे हुआ? यहाँ पे डिफेमेशन इज़ थ्रू अ विजिबल रिप्रेजेंटेशन. अब अगर इस एग्जाम्पल को हम लोग मॉडर्न एरा में लाएं तो मीम्स भी अंडर सर्टेन कंडीशन डिफेमेटरी मैटर बन सकते हैं. ठीक है. ध्यान रखिएगा इस बात का. मीम्स भी अंडर सर्टेन कंडीशंस डिफेमेटरी मैटर बन सकते हैं. अब एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं. अब इसमें एक्सेप्शंस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका जो एक्सेप्शन थर्ड है और एक्सेप्शन नाइन्थ है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं. ठीक है. नाइन्थ और थर्ड एक्सेप्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बाकी सब आपको सिर्फ ऊपर ही ऊपर प्राइमा फेसाई लेवल पे याद रखने हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट एक्सेप्शन इज इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड टू बी पब्लिश्ड, रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड. तो फर्स्ट एक्सेप्शन कहता है इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग which is true concerning any person
if it be for public good, that the imputation should be made or published. Whether or not it is a public good is a question of fact. Question of fact को मार्क कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए that truth is a defense against defamation. ये पहला एक्सेप्शन है. इसको शॉर्ट करना सीखिए, ठीक है. जब आपने पूरा लाइन पढ़ा तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट क्या समझते हैं. ट्रुथ फॉर द सेक ऑफ पब्लिक गुड इज द डिफेंस ऑफ डिफेमेशन. देन वी कम टू सेकेंड एक्सेप्शन, conduct of public servants. It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant in discharge of his public functions or respecting his character so far as his character appears in that conduct and no further. तो पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट का अगर आप क्रिटिसिज्म करें while is discharging his public functions या कोई imputation दें, then that would also not be defamation. Then we come to third exception. Now third exception says it is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of any person touching any public question and respecting his character so far as that character appears in that conduct and no further. अब ये illustration कहता है it is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting Z's conduct in petitioning government on a public question, in signing a requisition for a meeting on a public question, in presiding or attending at such meeting, in forming or joining any society which invites the public support, in voting or canvassing for a particular candidate for any situation in efficient discharge of the duties in which the public is interested. तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा थर्ड एक्सेप्शन में कि जब कोई भी व्यक्ति पब्लिक लाइफ में है और उसका कंडक्ट ऐसा है जो पब्लिक स्फेयर के रेल में फॉल करता है, तो व्हेन यू जज सच पर्सन बाय हिज कंडक्ट, वो इज़ अ पब्लिक फिगर, और फिर उस कंडक्ट को जज करते हुए अगर आप एक ओपिनियन बनाते हैं उसके बारे में, तो दैट वाज आल्सो नॉट डिफेमेशन. देखिए ओपिनियन जो है वो हमेशा फैक्चुअल बेसिस पे होता है. आपने उसका कंडक्ट देखा, आपको कंडक्ट अच्छा नहीं लगा, आपने क्रिटिसाइज़ किया, दैट इज़ नॉट डिफेमेशन, ठीक है. लेकिन आपने कंडक्ट नहीं देखा, आपने ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर दिया कि दैट पर्सन वो इज़ लेट अस सपोज रनिंग फॉर द पोजिशन ऑफ एन MLA और MP, और आपने सीधे बोल दिया कि दैट पर्सन इज़ अ थीफ बिना उसका कोई कंडक्ट देखे या बिना कोई फैक्चुअल बैकिंग के, देन दैट वुड अमाउंट टू डिफेमेशन. वो डिफेमेशन हो जाएगा क्योंकि आपने लास्ट लाइन नहीं सेटिस्फाई की, सो फार एज दैट कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. तो कैरेक्टर और कंडक्ट दैट शुड कॉमेंशरेट. कंडक्ट के बेसिस पे आप ओपिनियन बनाएंगे, ठीक है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल. और अगर ये पैरामीटर्स नहीं सेटिस्फाई हुए देन द पर्सन वुड बी लायबल फॉर डिफेमेशन. लेकिन अगर ये कैरेक्टर सेटिस्फाई हो गए देन द पर्सन विल नॉट बी लायबल फॉर डिफेमेशन. सो फोर्थ एक्सेप्शन पे आते हैं, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट्स. फोर्थ एक्सेप्शन सेज इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू पब्लिश अ सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस और द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग्स. अब कोर्ट के जजमेंट्स बताना या कोर्ट में जाके रिपोर्टिंग करना इज ऑल्सो नॉट डिफेमेशन. अब एक्सप्लेनेशन है इसकी. अ जस्टिस ऑफ पीस और अदर ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन ओपन कोर्ट प्रिलिमिनरी टू अ ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस is a court within the meaning of the above section. Now we come to fifth exception, merits of a case decided in court or conduct of the witness and others concerned. It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the merits of any case, civil or criminal, which has been decided by a court of justice, or respecting the conduct of any person as a party, witness or agent in any such case, or respecting the character of such person as far as his character appears in that conduct and no further. तो ये आप लाइन अब समझ चुके होंगे कि as far as his character appears in that conduct and no further का क्या मतलब है. इसका मतलब है आपका ओपिनियन ना उस कंडक्ट के फैक्चुअल बेसिस पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है. आपका ओपिनियन कंडक्ट के बाद आना चाहिए,
कंडक्ट को प्रिसीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने पहले से ओपिनियन बना के रखा है, उसका कोई कंडक्ट या फैक्ट से कोई बैकिंग नहीं और आपने एक ऐसा इम्प्यूटेशन कर डाला विच हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन, तब आप एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन कहता है ए सेज आई थिंक जीज एविडेंस ऑन ट्रायल इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी दैट ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये किस पे बेस्ड है? कंडक्ट पे बेस्ड है, तो दिस इज नॉट डिफेमेशन। बट इफ A says, I do not believe what Z asserts at the trial because I know him to be a man without veracity. अब ये डिफेमेशन में आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन कंडक्ट को प्रिसीड कर रहा है। यहाँ पे A कह रहा है कि मैं Z को बिलीव ही नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि वो ही इज़ अ मैन विदाउट वेरासिटी और ही इज़ अ मैन हु कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। अब इसका कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हेंस दिस इज डिफेमेशन। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि डेली लाइफ में कितने सारे लोग ऐसा करते हैं, है ना, स्पेशली द न्यूज़ जर्नलिस्ट, कितने सारे लोग ऐसा करते हैं। ऑल ऑफ देम आर अंडर द रिस्क ऑफ अ डिफेमेशन सूट, ये बात याद रखिएगा, सिविल साइड पे और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेमेशन एज वेल, दोनों साइड के लिए लायबल होंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, इन इंडिया डिफेमेशन इज बोथ एन ऑफेंस एंड अ टॉट भी है, ऑफेंस भी है। Then we come to sixth point, merits of public performance. Sixth exception. It is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of any performance which its author has submitted to the judgment of the public or respecting the character of the author so far as the character appears from such performance and no further. Explanation. A performance may be submitted to judgment of the public expressly or by acts on the part of the author which implies a submission to the judgment of public. अब illustration क्या कहता है? A person who publishes a book submits the book to the judgment of public. Illustration B. A person who makes the speech in public submits that speech to the judgment of public. Illustration C. An actor or singer who appears on a public stage submits his acting or singing to the judgment of public. Illustration D. A says of the book published by Z, Z's book is foolish. Z must be a weak man. Z's book is indecent. Z must be a man of impure mind. अब देखिए, यहाँ पे ए का ओपिनियन किस बेसिस पे बन रहा है? जी की बुक पढ़ने के बाद तो उसे जी की बुक में कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उसने जी का कैरेक्टर उस बुक के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया। अब उसी के बाद का इलस्ट्रेशन देखिए जो कहता है, जिसमें ए कहता है आई एम नॉट सरप्राइज दैट जीज बुक इज फूलिश एंड इनडिसेंट फॉर ही इज अ वीक मैन एंड अ लिबर्टाइन। अब यहां पे क्या हो रहा है? ओपिनियन इज प्रिसीडिंग द कंडक्ट, ठीक है, ओपिनियन इज प्रिसीडिंग द फैक्ट। पहले ही ओपिनियन बना लिया है। यहां पे ए क्या कह रहा है कि मुझे सरप्राइज नहीं है कि जी की बुक फूलिश है या इंडिसेंट है, क्योंकि मैं तो जानता ही हूं कि वो आदमी वीक है और इंडिसेंट है एंड इज अ लिबर्टाइन। इन दैट सिचुएशन दिस इज डिफेमेशन एंड अ पर्सन इज लायबल एज सच, बोथ साइड्स पे, सिविल पे भी क्रिमिनल पे भी, क्योंकि यहाँ पे उसका ओपिनियन किसी क्रिटिसिज्म पे नहीं बेस्ड है या वो मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस पे नहीं बेस है, ठीक है, उन सारी चीज़ों पे नहीं बेस है, वो उसके प्री जुडिशियल नोशंस बेस के ऊपर बेस है एंड दैट वुड अमाउंट टू एन इम्प्यूटेशन विच हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन इसके बड़े सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, दैट इज वाई डिफेमेशन इज नॉट अ वेरी नुआंस टॉपिक। देन वी कम टू सेवेंथ एक्सेप्शन, censure passed in good faith by the person having lawful authority over another. It is not defamation in a person having over another any authority either conferred by law or arising out of lawful contract made with other to pass in good faith any censure on the conduct of that person in matters to which the lawful authority relates. तो अब इसमें क्या है? A judge censoring in good faith the conduct of the witness or an officer of the court, a head of a department censoring in good faith those who are under his orders,
a parent censoring in good faith a child in the presence of other children, a schoolmaster whose authority is derived from parent censoring in good faith a pupil in presence of other pupil, a master censoring a servant in good faith for remissness in service, a banker censoring in good faith the cashier of his bank for the conduct of such cashier as such cashier are within the exception. अब आपको इसमें रेमिसनेस नहीं समझ में आया होगा, मैं बता देता हूँ उसकी मीनिंग क्या है. रेमिस कैन बी सेड टू बी शोइंग नेग्लिजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्क और ड्यूटी और केयरलेसनेस और शोइंग नेग्लेक्ट और इनअटेंशन, तो वो आता है. ठीक है, इट्स एन आर्केइक टर्म. Then we come to 8th exception. It says, it is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of that accusation. So what does the illustration says? If A in good faith accuses Z before a magistrate, if A in good faith complains to the conduct of Z, a servant to Z's master, if A in good faith complains to the conduct of Z, a child, to Z's father, A is within the exception. ठीक है, तो अगर आप गुड फेथ में एक एक्यूजेशन किसी पर्सन के खिलाफ बोलते हैं and such person has lawful authority over that person with respect to the subject matter of the accusation, then that would also not amount to defamation. Then we come to 9th exception. 9th exception कहता है imputation made in good faith by the person for protection of his or others' interest. It says, it is not defamation to make an imputation on character of another, provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interest of the person making it or any other person for public good. अब इसका illustration देखिए. A shopkeeper says to B, who manages his business, sell nothing to Z unless he pays you ready money, for I have no opinion of his honesty. A is within the exception if he has made this imputation on Z's good faith for protection of his own interest. ठीक है, वो क्यों कह रहा है कि Z को कुछ मत बेचना जब तक वो तुम्हें पैसा ना दे, उधार पे मत देना, मतलब क्रेडिट पे मत देना. वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे अपने इंटरेस्ट बचाने हैं और उसने वो गुड फेथ में बोला. ठीक है, अब देखिए एक थीम मिलेगी आपको सारे एक्सेप्शंस में गुड फेथ की, अभी मैं आऊँगा उस पर. देयर इज़ अ कंसिस्टेंट थीम जो आप गुड फेथ देख रहे हैं एंड इट इज़ वेरी रेलेवेंट. पहले मैं रीडिंग ख़त्म कर लूँ. फिर इलस्ट्रेशन बी कहता है, अ मैजिस्ट्रेट इन मेकिंग अ रिपोर्ट टू हिज ओन सुपीरियर ऑफिसर कास्ट एन इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ जी. हियर इफ इम्प्यूटेशन इज मेड इन गुड फेथ एंड फॉर पब्लिक गुड, A is within the exception. Then we come to the last exception, that is caution intended for good faith, for good of the person to whom conveyed or for public good. It is not defamation to convey a caution in good faith to one person against another, provided that such caution be intended for good of the person to whom it is conveyed or for some person in whom that person is interested or for public good. तो public good के लिए अगर कोई caution दे देता है तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं जाता. अब देखिए गुड फेथ बार बार आ रहा है. ठीक है, 10 एक्सेप्शन पढ़ लिए तब चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी. गुड फेथ इज कमिंग अगेन एंड अगेन. दिस टर्म इज बीइंग रीइटरेटेड बाय द एक्ट. क्यों? गुड फेथ की एक डेफिनेट डेफिनेशन है. ठीक है, इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 52 ऑफ द IPC. Nothing is said to be done without due care and attention can be said to be good faith. अगर due care and attention गायब है तो वो good faith की कैटेगरी में नहीं आता है. Always remember, a person must be attentive to the facts. He should have requisite care about the facts. care का मतलब है कि वो चीज़ें समझ के, देख समझ के और circumstances को देख समझ के बोले. ठीक है, और अगर उसमें उससे गलती हो जाती है एंड इट टर्न्स आउट दैट हिज स्टेटमेंट्स वर नॉट करेक्ट, देन दैट वुड बी प्रोटेक्टेड बाय गुड फेथ डॉक्ट्रिन. ठीक है, वही गुड फेथ का रिटरेशन. अब किसी भी एक्सेप्शन में जाए दैट इज अनदर थिंग. तो गुड फेथ रिक्वायर करता है ड्यू केयर एंड अटेंशन. केयरलेसली अगर कोई किसी की इंसल्ट करे, इम्प्यूटेशन
बोलने लगे देन तो मेंस रिया एस्टैब्लिश हो जाएगी, मेंस रिया विल बी इजीली बी एस्टैब्लिश्ड। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो केयरलेस है डिफेमेटरी इम्प्यूटेशंस कास्ट करता है किसी पर्सन पे और फिर प्रोसिक्यूट होता है और वो फिर कहता है कि मैंने तो गुड फेथ में ये बोल दिया था, तो कोर्ट बोलेगा कि नथिंग इज सेट टू बी डन इन गुड फेथ अनलेस इट इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। आपका ड्यू केयर गायब है और आपका अटेंशन गायब है, आपने नेग्लिजेंटली स्टेटमेंट्स मेक किए, यू आर लायबल फॉर डिफेमेशन, क्योंकि यहाँ पे गुड फेथ गायब है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर गुड फेथ की जब जब बात होगी यू विल इक्वेट विथ सेक्शन 52 ऑफ द आईपीसी, जब हम लोग आईपीसी पढ़ रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा ये ड्यू केयर एंड अटेंशन है, ड्यू केयर एंड कॉशन नहीं है। ड्यू केयर एंड कॉशन सेक्शन 80 में है, यहाँ पे ड्यू केयर एंड अटेंशन है। अब बेसिक रीडिंग हो गई, तो अब जरा बात कर लेते हैं राइट टू रेपुटेशन की। देखिए डिफेमेशन और राइट टू रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा लिंक है। इनफैक्ट राइट टू रेपुटेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, अब राइट टू रेपुटेशन एंड राइट टू डिग्निटी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट बना दिया। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपकी डिग्निटी अफेक्ट करता है तो वो डिफेमेशन ही नहीं कर रहा है, वो सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं कर रहा है, वो आपके फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन कर रहा है। ऑलराइट, तो इस कंटेक्स्ट में एक केस आपको बताऊंगा, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये याद कर लीजिएगा, 13 मई 2016 को ये डिसाइड हुआ। और इसमें क्या चीज़ रेलेवेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस केस में 499 एंड सेक्शन 500 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिसाइड हुई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यहाँ पे डिसाइड हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन को अपहेल्ड किया था और बोला था कि नो दिस सेक्शन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये दोनों ही सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अब हुआ क्या था कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मेड सम करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट मिस जयललिता, who was then Tamil Nadu Chief Minister, and in response Tamil Nadu state government filed a defamation case against Dr. Swamy. And Dr. Swamy was joined by prominent politicians such as Rahul Gandhi and Arvind Kejriwal, and they filed a writ petition challenging the constitutionality of the criminal defamation law in India. Supreme Court upheld section 499 and 500 IPC and said that criminal defamation is not disproportionate restriction on free speech, क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं आर्टिकल 19 का वायलेशन है। And Supreme Court justified it by saying because protection of the reputation is a fundamental right as well as a human right. And इसके लिए कोर्ट ने यूके, यूएसए, कनाडा के बहुत सारे जजमेंट्स पे रिलाई किया एंड रीअफर्म द राइट ऑफ रेपुटेशन एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। एक पॉइंट और था कि इसमें लिया गया था कंटेंशन सुब्रमण्यम स्वामी के केस में कि डिफेमेशन इज नॉट अ पब्लिक रॉन्ग, इट इज़ अ प्राइवेट रॉन्ग। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 499 इज नॉट एन एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 because the society is a collection of individuals and what affects the individual also affects the society as a whole. Hence, it is valid to treat defamation as a public wrong. Second contention भी आंसर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। Next, Supreme Court said by using the principle of balancing the fundamental rights, the court held that right of freedom of speech and expression cannot be allowed so much room that even reputation of an individual which is constituent of article 21 would have no entry into that area. Alright, criminal defamation laws safeguard the constitutional values of human dignity flowing from the preamble and the fundamental duties. The court also rejected the argument that sections are vaguely worded and ambiguous, and it used constituent assembly debates to understand what the framer of the constitution meant by the word defamation in article 19 clause 2. वहीं पे restrictions है, ध्यान रखिएगा। article 19 के बाद के जो clause 2, 3, 4, 5 ये जो clauses हैं यहाँ पे restrictions mentioned है, और article 19 के सब clause 1 में आपके rights mentioned है, freedom of speech and expression 1A clause 1A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फिर एसेट्रा ये सब चलता है। तो एक चीज़ आपको इस जजमेंट्स में जो याद रखनी है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज हुई डिफेमेशन की इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने राइट
टू डिग्निटी, ऑनर और रेपुटेशन को रिकॉग्नाइज किया अंडर आर्टिकल 21 में, और इट अपहेल्ड द क्रिमिनल डिफेमेटरी लॉज इन इंडिया। जरा गुड फेथ की बात कर लें थोड़ा और। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 2 मार्च 1965 को डिसाइड हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुड फेथ रिक्वायर्स नॉट लॉजिकल इनफॉलिबिलिटी बट ड्यू केयर एंड अटेंशन, बट हाउ फार द erroneous action or statements are to be imputed to want of due care and caution must in each case be considered in reference to fact and circumstances of each case and the capacity and the intelligence of the person whose conduct is in question. Honest conclusions of calm and philosophical mind may differ very largely from the honest conclusion of a person excited by sectarian zeal and untrained to the habits of precise reasoning. At the same time, it must be borne in mind that good faith in formation of an expression or formation of an opinion can afford no protection to an imputation which does not purport to be based on that which is legitimate subject of the public comment. तो पहली बात है, कोर्ट ने बोला कि एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि क्या गुड फेथ है क्या नहीं, उसके लिए तो ड्यू केयर एंड अटेंशन तो होना ही चाहिए, बट एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्सन वो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है फर्स्ट, और दूसरा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। एक फिलोसफिकल माइंड की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थोड़ी हायर होती है एज कम्पेयर टू द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ अनदर पर्सन, है ना। तो दोज हु आर अनट्रेन्ड टू द हैबिट्स ऑफ रीजनिंग उनके लिए थोड़ा बार नीचे है, एंड दोज हु आर ट्रेन्ड टू द हैबिट ऑफ रीजनिंग उनके लिए बार थोड़ा ऊपर है। तो ये कोर्ट ने डिस्क्राइब किया इस केस में, और फिर साथ में एक और चीज़ बोली कि ये सब तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट जिसके बारे में इम्प्यूटेशन दिया जा रहा है इट इज़ नॉट अ लेजिटिमेट सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक कमेंट, तो फिर गुड फेथ की डॉक्ट्रिन आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। इट हैज़ टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक कमेंट। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए अभी कि कोई कट एंड राइट फार्मूला नहीं है कि कब एक्सेप्शन में आएगा कब नहीं आएगा। ये चीज़ें डिसाइड होंगी इन अकॉर्डेंस विद फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, एंड इट हैज़ ऑल्सो टू बी ऑब्जर्व दैट वेदर द ड्यू केयर एंड अटेंशन वॉज देयर और नॉट। अब कभी कभी थर्ड एंड नाइन्थ एक्सेप्शन अक्सर ओवरलैप कर जाते हैं। अब इस पॉइंट पे एस निहाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस अर्जन दास का जजमेंट का एक रेलेवेंट पोर्शन मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि इन डिसाइडिंग वेदर एन अक्यूज पर्सन एक्टेड इन गुड फेथ अंडर द 9th एक्सेप्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ले डाउन एनी रिजिड रूल और टेस्ट। It would be the question to be considered on fact and circumstances of each case, that what is the nature of imputation, under what circumstances it was made, what is the status of the person who makes the imputation, was there any malice in his mind when he made the imputation, did he make any inquiry before he made it, are there reasons to accept his story that he acted with due care and attention and was satisfied that the imputation was true. These are some of the considerations that the High Court or the courts in general have to take into account. अब थर्ड एक्सेप्शन है जो पब्लिक क्वेश्चन की डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में हाई कोर्ट कहता है कि जो थर्ड एक्सेप्शन एम्बॉडीज द डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर कमेंट, वो फेयर कमेंट की डॉक्ट्रिन है. सो वेयर अ राइटर मेक्स अ पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक मैन द सब्जेक्ट ऑफ कमेंट, it is for the public and it is for the public good, the writer is not liable to an action if the comments are made honestly and he honestly believes the facts as he states them. However, an imputation or criticism cannot be justified on the ground of fair comment the moment it is shown that the criticism is based upon a misstatement of fact. तो देखिए, misstatement of fact या facts को twist and turn नहीं करना चाहिए, ठीक है, वरना criticism won't be protected. Then the High Court continues, whether or not it is for public good is a question or a fact, and like any other defense, the onus of proving the same lies on the accused. It has been repeatedly held that the freedom of press
is not higher than the freedom of an ordinary citizen, and it is subject to the same limitation as are imposed by Article 19 Clause 2 of the Constitution. एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए if you are the student of constitutional law, that इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके कोई अलग से राइट नहीं है. जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वही प्रेस के भी पास है. ऑल राइट, दे हैव नॉट बीन गिवन अ फेवरेबल ट्रीटमेंट. कंटिन्यूइंग the excerpt from the judgment, the High Court says the limitations inter alia are to the effect that the freedom of speech and expression is not to be exercised in such a way as to constitute an infraction of the law relating to defamation. Just as every individual possesses the freedom of speech and expression, every individual also possesses a right to reputation, which is regarded as property. Similarly, the High Court continues and says that the good faith is also a question of fact, public good is also a question of fact. So it has to be found that whether the petitioners acted with due care or attention or not. Honesty of the purpose is also an essential ingredient in judging the good faith. And in this judgment, Delhi High Court very elaborately, decided the scope of third and ninth exception. ये जो exceptions हैं अक्सर overlap करते हैं. That is why I am mentioning them. और Delhi High Court then once again said that simple belief or actual belief by itself is not enough. It must be shown that the belief in the impugned statement, मतलब जो statement challenged है, जिसको कहा जा रहा है ये statement defamatory है, that the impugned statement had a rational basis and was not just a blind simple belief. मतलब उसका rational basis था. ये कौन सी लाइन है जिसको रिकग्निशन मिल रहा है बेयर एक्ट की? ये वही लाइन है जो आप बार बार एक्सेप्शंस में पढ़ रहे थे. सो फार हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर. और सिक्स एक्सेप्शन में दूसरी तरीके से लाइन यूज़ की गई है, वो बोला गया है सो फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम सच परफॉर्मेंस एंड नो फर्दर. ये उन्हीं लाइनों की बात की जा रही है और वहीं पे बोल रहा है हाई कोर्ट कि ये सफिशिएंट नहीं होगा कि उनका सिर्फ बिलीफ था. ये दिखाना होगा दैट देयर वाज अ रैशनल बेसिस फॉर दैट बिलीफ. तो वो रैशनल बेसिस क्या हुआ कि उसके कंडक्ट या उसकी पब्लिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप ओपिनियन बनाइए. ठीक है, ये नहीं कि आपने ब्लाइंड बिलीफ पहले ही बना के रखा है. Now I'll tell you next judgment on ninth exception. क्योंकि ninth exception पे ही केस लॉ ज़्यादा है. Supreme Court in Sukra Mahato versus Basudev Kumar Mahato said that the person alleging good faith has to establish the fact that he made an inquiry before he made the imputation. कि उसने इंक्वायरी की before he made the imputation, and he has to give the reasons and facts to indicate that he acted with due care and intention and was satisfied and the imputation was true. The proof of truth of the statement is not an element of the ninth exception as of first exception. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सच्चाई की बात है वो फर्स्ट एक्सेप्शन में तो रेलेवेंट है पर नाइन्थ एक्सेप्शन में उतनी नहीं है. सो इन नाइन्थ एक्सेप्शन द पर्सन मेकिंग द इम्प्यूटेशन हैज टू सब्सटैंशिएट दिस हिज इंक्वायरी वाज अटेंडेड विद ड्यू केयर एंड अटेंशन एंड ही वाज दस सैटिस्फाइड दैट द इम्प्यूटेशन वाज ट्रू. ठीक है, तो इंक्वायरी प्रिसीड करनी चाहिए इम्प्यूटेशन को और वो इंक्वायरी फिर दिखाना होगा कि वो ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ कैरी आउट की गई थी. सिमिलरली एक और केस बताता हूँ, सेवक राम वर्सेस आर के करंजिया. ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है. अब इस केस में देयर वाज एन एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर and he was the respondent was the editor of the newspaper, and he was prosecuted under section 500 IPC for publication of a news item which was per se defamatory. And the editor alleged that he published the news item on the basis of an inquiry report submitted by the high official to the government relating to certain irregularities committed in jail. He claimed the protection under the exception 9th और सेक्शन 499. तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अब सुप्रीम कोर्ट गुड फेथ के कंटेक्स्ट में एक बात बोलता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट का सबमिट होना बाय इटसेल्फ कैन नॉट फर्निश द लैक्यूने. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेज दैट द इंसिस्टेंस जो नाइन्थ एक्सेप्शन कह रहा है, नाइन्थ एक्सेप्शन क्या इंसिस्ट करता है कि ड्यू केयर एंड अटेंशन हो, गुड फेथ हो. तो अगर गुड फेथ की बात कर रहा है नाइन्थ एक्सेप्शन तो रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस तो पहले ही गायब है.
So the standard and care must depend on the fact and circumstances of individual cases. The nature of the imputation, the need of the opportunity for the verification of the situation and the context in which the imputation was made, the position of the person making the imputation, and the variety of other factors. Good faith, therefore, is a matter of evidence. It is a question of fact to be decided on the particular fact and circumstances of each case. So too is the question whether the imputation was made for the public good or not. In fact, first exception of 499 IPC expressly states whether or not this is a public good is a question of fact. Public good, like good faith, is a matter of evidence, not a conjecture. तो कोर्ट ने रिस्पोंडेंट को बोला कि कंजेक्चर के बेसिस पे आपको बेनिफिट नहीं दे सकते, आपको दिखाना पड़ेगा बाय एविडेंस, बाय फैक्ट्स कि द मैटर फेल विद इन द एक्सेप्शन, अज्यूमिंग कि इनिशियल ओनर्स प्रोसिक्यूशन ने निभा दिया है, कि प्रोसिक्यूशन ने इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ अपना सेटिस्फाई कर दिया है. तो जब रिस्पोंडेंट डिफेंस ले रहा है कि मेरा केस एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो उसको दिखाना पड़ेगा बाय एविडेंस. कंजेक्चर्स का यहाँ पे काम नहीं चलेगा या इन्फेरेंसेस का. इट हैज़ टू बी शोन बाय द एविडेंस दैट द केस ऑफ द रिस्पोंडेंट और द केस ऑफ द अक्यूज्ड फेल विद इन द स्फीयर ऑफ public good or the imputations were made in good faith. ये फैक्चुअल बेसिस पे होगा, ये एविडेंस के बेसिस पे होगा. इट कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ कंजेक्चर. अब एक पॉइंट आता है कि क्या इनिशियल स्टेज पे क्वाश किया जा सकता है आपका डिफेमेशन केस. तो देखिए अब इस पे ना थोड़ा फ्लिप फ्लॉप है सुप्रीम कोर्ट का. प्रीडोमिनेंट व्यू है, जैसे एक केस है सुप्रीम कोर्ट का बलराज खन्ना वर्सेस मोतीराम. अब इसमें कंप्लेंट की गई थी मैजिस्ट्रेट से डिफेमेशन को लेके, और क्वाशिंग पिटिशन में 482 में हाई कोर्ट में जब पार्टीज़ गई, अक्यूज पार्टी गई इन ऑर्डर टू क्वाश द पिटिशन, तो उन्होंने ग्राउंड लिया कि मेरा केस एक्सेप्शन में आता है तो इसको क्वाश कर देना चाहिए. जब ये हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई तो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक्सेप्शन में केस फॉल करता है या नहीं ये तो ट्रायल पे पता चलेगा ना, दैट इज़ अ मैटर ऑफ एविडेंस. तो इट कैन नॉट बी क्वाश्ड एट द इनिशियल स्टेज. इनिशियल स्टेज पे क्वाश नहीं हो सकता, बिकॉज वेदर द केस ऑफ द एक्यूज फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन और नॉट इट इज़ अ मैटर ऑफ एविडेंस. तो अगर मैटर ऑफ एविडेंस है तो ट्रायल की स्टेज पे ही तो एविडेंस लिया जाएगा. सो इट मीन्स यू कैन नॉट क्वाश इट एट द इनिशियल स्टेज, और इसको ट्रायल पे जाना होगा. ठीक है, दैट वाज द पोजीशन इन बलराज खन्ना वर्सेस मोतीराम. लेकिन अगर मान लीजिए कंप्लेंट में ही ऐसे फैक्ट्स एलेज किए गए हैं जो प्राइमा फेसाई दिखा रहे हैं कि केस डिफेमेशन का नहीं है या इट फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन, फैक्ट्स जो कंप्लेंट के इटसेल्फ हैं वो खुद ही दिखा रहे हैं कि एक्सेप्शन में जा रहे हैं, देन इन दैट सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट क्वाश कर सकता है प्रोसेस, मतलब सुपीरियर कोर्ट प्रोसेस को क्वाश कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि जजमेंट देने वाला हूं इसलिए बोल दिया, पर कोई भी सुपीरियर कोर्ट इशू ऑफ प्रोसेस क्वाश कर सकता है. इशू ऑफ प्रोसेस CRPC में 204 में होता है, आइदर बाय द मीन्स ऑफ समन्स और वारंट्स. तो in this point पे there is the case of Rajendra Kumar, Sitaram Pandey and others versus Uttam and another decided on 11th February 1999. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अमरनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, मधुलिमाय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन वही सारे जजमेंट्स को, अगर CRPC बैच के स्टूडेंट्स हैं तो दे वुड बी अवेयर ऑफ दिस जजमेंट्स, उन्हीं को कोट करते हुए बोला कि इश्यू ऑफ प्रोसेस is a quasi-final order and the revisional jurisdiction under 397 can be exercised against the same. ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया, और ये भी साथ में बोला द हाई कोर्ट was not justified in coming to the conclusion that session judge has no jurisdiction to interfere with the order in view of the bar of section 397(2) of the code. 397 subsection 2 कहता है कि interlocutory orders में revision petition नहीं maintained हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इश्यू ऑफ प्रोसेस इज नॉट एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, इट्स रादर
a quasi final order. ठीक है. So in that situation सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि रिवीजन पिटिशन इशू ऑफ प्रोसेस के लिए आप प्रेफर कर सकते हो. ठीक है, एक पॉइंट ये था. अब दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट इस केस में ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एलिगेशंस देखे और बोला द ग्रैवामेन ऑफ द एलिगेशन इन द कंप्लेंट पिटिशन इज दैट द अक्यूज पर्सन्स मेड अ कंप्लेंट टू द ट्रेजरी ऑफिस अमरावती containing false imputations to the effect that the complainant has come to the office in a drunken state and abused the treasury officer, additional treasury officer and the collector, and circulated in the office a filthy language, and such imputations has been made with intention to cause damage to the reputation and the services of the complainant. In order to decide the correctness of this averment, the magistrate, instead of issuing process, had called upon the Treasury Office to hold inquiry and submit a report, and said that the Treasury Office did submit a report to the magistrate. The question for consideration is that whether the allegations in the complaint read with the report of the magistrate make out the offence under section 500 or not. Section 499 of the IPC defines the offence of defamation, and section 500 of the IPC provides the punishment for the same. Now, exception 8 of section 499 clearly indicates that it is not a defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have a lawful authority over that person with regard to the subject matter of accusation. The report of Treasury Officer clearly indicates that pursuant to the report made by the accused persons against the complainant, a departmental inquiry had been initiated and the complainant was found to be guilty. Under such circumstances, the fact that the accused persons had made a report to the superior of the complainant alleging that he had abused to the treasury officer in a drunken state, which is the gravamen of the present complaint and nothing more, would be covered by the exception 8 of 499 of the IPC. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे मटेरियल्स प्राइमा फेसा इटसेल्फ दिखा रहे हैं कि यू कैन कम टू द कंक्लूजन दैट द केस इज डायरेक्टली फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शन, तब आप उसे क्वाश कर सकते हैं. ठीक है, तब आप इशू को भी क्वाश कर सकते हैं, इशू ऑफ प्रोसेस को भी क्वाश कर सकते हैं और केस को भी क्वाश कर सकते हैं. लेकिन प्राइमा फेसा मटेरियल पे दिखना चाहिए. लेकिन जहाँ पे नहीं दिख रहा, जैसे कि इस केस में क्या था, रिपोर्ट भी साथ में थी, तभी तो हो गया. अगर रिपोर्ट भी साथ में ना होती और सिर्फ एलिगेशंस होते तो एलिगेशन तो प्राइमा फेसा ऑफेंस बना रहे हैं, तो कोर्ट कहता नहीं ट्रायल होने दो, ट्रायल पे पता चलेगा क्या होगा या नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट भी साथ में थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट देखी. अब रिपोर्ट देखी तो इस कंक्लूजन पे आया कि ओके प्राइमा फेसा ही हमको लग रहा है कि द ऑफेंस इज नॉट मेड आउट, तो इट ओवर रूल्ड द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड क्वाश द इशू ऑफ प्रोसेस. क्योंकि उसको प्राइमा फेसा लेवल पे ऑन द फेस ऑफ इट दिख गया कि जो केस है वो जा रहा है 8th एक्सेप्शन में. ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा CRPC के पॉइंट से ओवरलैप कर रहा है. तो ये मैंने बस आपके ट्रिविया के लिए बता दिया कि आप जानिए इंटरलिंक करना, इसको समझिए. और बाकी ये मत समझिएगा कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है. दिस विल नॉट कम इन एग्ज़ाम. दिस इज़ अ वेरी एडवांस कंसेप्ट. अब एक पॉइंट से मैं डील करता हूँ, डेफेमेशन इन कमर्शियल स्पीच, दैट इज़ इन एडवर्टाइजमेंट. अब देखो, जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन गोदरेज सारा ली लिमिटेड वर्सेस रैकेट बेंकेसर डिसाइडेड ऑन 15 फरवरी 2006. अब इसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से एकदम डायरेक्टली लिए और बोला कि कमर्शियल स्पीच कब डिफेमेशन हो सकती है. अब देखिए, अब डिस्पैरेजिंग एक चीज़ है जो सिविल डोमेन में ज़्यादा फॉल करती है, पर क्रिमिनल डोमेन में भी आ सकती है अगर मेंस रिया दिखाई जाए तो. अगर जो रेक्विजिट मेंस रिया है, जैसा कि 499 मांगता है, वो दिख गई डिस्पैरेजिंग कमर्शियल स्पीच में, तो वो डिफेमेशन में भी आ सकता है. पर पहले उसके लिए समझ लीजिए कि डिस्पैरेजिंग होता क्या है. तो इन द जजमेंट 5 principles were said regarding disparaging, and that was first, that a tradesman is entitled to declare his goods to be the best in the world even though the declaration is untrue. कोई भी ट्रेड्समैन के पास ये एंटाइटलमेंट है कि वो अपने गुड्स को दुनिया का बेस्ट बता दे,
जबकि हो सकता है ये डिक्लेरेशन गलत हो। सेकेंडली, ही कैन ऑल्सो से दैट हिज गुड्स आर बेटर देन हिज कॉम्पिटिटर्स इवन दो द स्टेटमेंट इज़ अनट्रू। ये भी कह सकता है कि उसके जो गुड्स हैं उसके कॉम्पिटिटर से बेटर हैं। हो सकता है ये भी स्टेटमेंट गलत हो, लेकिन वो कह सकता है। थर्ड इज, फॉर द पर्पज ऑफ सेइंग दैट हिज गुड्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड और हिज गुड्स आर बेटर देन हिज कॉम्पिटिटर्स, ही कैन इवन कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ हिज गुड्स ओवर द गुड्स ऑफ अदर्स। तो अपने गुड्स के एडवांटेजेस को वो कंपेयर कर सकता है दूसरे गुड्स से, पर वो क्या नहीं कर सकता, अब कोड बताता है। In fourth point, it mentions, he, however, cannot, while saying that his goods are better than his competitors, say that his competitors' goods are bad. वो अपनी तारीफ कर सकता है पर दूसरे की बुराई नहीं कर सकता। इस पॉइंट को याद रखिएगा। And if he says so, he really slanders the good of his competitors. And in other words, he defames his competitors and their goods, which is not permissible. Fifth principle is, if there is no defamation to the goods or to the manufacturer of such goods, no action lies. But if there is defamation, an action lies, and if the action lies for recovery of damages for defamation, then the court is also competent to grant an order for injunction restraining the repetition of such defamation. जनरली ध्यान रखिएगा, इंजंक्शन, डैमेजेस, कंपनसेशन ये तो चलता ही है। मेंसरी अगर आपने दिखा दी तो ये वहाँ पे भी आ जाएगा, क्रिमिनल लॉ में भी आ जाएगा। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, ये एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको पैसे बहुत कमाने हैं ना, तो यही सारी चीज़ें हैं विच इज़ वेरी रेलिवेंट, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें शामिल होती हैं। जैसे आपको एक केस बताता हूँ विच रिलेट्स टू डिस्पैरेजमेंट ऑफ गुड्स। डिस्पैरेजमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है, मैं रिटरेट कर देता हूँ। इट इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट अ कॉम्पिटिटर्स ग्रोथ विच इज़ अनट्रू और मिसलीडिंग एंड इट इज़ मेड टू इन्फ्लुएंस और टेंड्स टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक नॉट टू बाय इट। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ डिस्पैरेजिंग द गुड्स ऑफ अनदर। डिस्पैरेजमेंट का मतलब आप समझते ही होंगे, इसका मतलब होता है टू बिलिटल समवन, टू शो समवन ऑफ हैविंग अ वेरी लिटिल वर्थ, जिसको कॉमन लैंग्वेज में डाउनग्रेड करना या प्लेइंग डाउन करना या बिलिटल करना भी कहते हैं, ठीक है। पर लीगल वर्ल्ड में उसको आप डिस्पैरेजिंग ऑफ गुड्स कहेंगे। सो देयर वाज दिस केस ऑफ डी बेयर्स अब्रेसिव प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क लिमिटेड। ये जजमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय कैलकाटा एंड दिल्ली हाई कोर्ट बोथ, and court gave an example of disparagement in the following manner. In this case, the manufacturer of natural diamond abrasive sued a manufacturer of a competing abrasive made from synthetic diamonds on the ground that the latter has circulated a pamphlet containing a report of laboratory experiment of comparing the performance and qualities of those two products and wherein the goods of the plaintiff have been tainted. Laboratory report में आया है कि जो दूसरा कॉम्पिटिटर है उसके गुड्स ख़राब है, टेंटेड है, तो ऑफ कोर्स उसके गुड्स को डिस्पैरेज किया गया, तो वो प्लेंटिफ बना, है ना, तभी तो उसने कंप्लेन की होगी। सो द लर्नड जज एज पेड 605 ऑफ द रिपोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट माई गुड आर बेटर देन एक्स is only a more dramatic presentation of what is implicit in statement. My goods are best in the world, and such a statement would not be actionable. But if the statement is my goods are better than X because X are absolutely rubbish, the statement would be actionable. अब इस पर एक और केस बताता हूँ, डाबर वर्सेस इमामी। अब इसमें एक कमर्शियल आता था, आप लोग ने शायद देखा भी होगा बचपन में। ये कमर्शियल वॉज शोन ऑन टीवी प्रोजेक्टेड च्यवनप्राश इन अ नेगेटिव वे। आपको पता है डाबर का च्यवनप्राश आता है, इमामी का भी एक हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश आता है। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या था, गर्मियों में च्यवनप्राश भूल जाओ, हिमानी सोना चांदी अमृत प्राश खाओ, ठीक है। इसमें दिस वॉज हेल्ड टू बी ए क्लियर केस ऑफ नेगेटिव कैंपेन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांटिव च्यवनप्राश, और इसको डिस्परेजमेंट ऑफ गुड्स माना था, ठीक है। एक पेप्सी को लेके भी केस था डिवीजन बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट का। आपको एक ऐड याद होगा जहाँ पे थम्स अप का ऐड था, वो उसने पेप्सी को बच्चों वाली ड्रिंक बोला था, उसको भी डिस्पैरेजमेंट माना था, नेगेटिव कैंपेन मानी थी। दैट वाज आल्सो डिस्पैरेजमेंट ऑफ गुड्स। वो माना गया था कि दैट आल्सो कम्स विद इन द सिविल एस्पेक्ट ऑफ डिफेमेशन। तो एडवांस कंसेप्ट है ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी एडवांस कंसेप्ट।
तो ये उसके पर्पज़ के लिए, प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए। अब देखिए इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। सो डिस्पैरेजिंग ऑफ गुड्स को लेके मैंने सोचा था कि आपको थोड़ा सा बता दूं। वैसे स्टडी नोट पे मैंने आपके लिए केस में 2-3 और मेंशन कर रखे हैं, मन करे तो पढ़ लीजिए, पर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है किसी भी, एचजीएस में भी नहीं। एचजीएस दिल्ली के एचजीएस में शायद आ जाए, पर बाकी जगह नहीं। और लास्टली मैं एक पॉइंट पे आता हूँ, कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और थर्ड पर्सन को किसी तरीके से उसने सुन लिया या ले लिया वो कम्युनिकेशन, अगर मान लीजिए वो रिटन फॉर्म में है, तो क्या वो डिफेमेशन में होगा? अब पहले मैं जरा इंग्लैंड की थोड़ी बात कर लेता हूँ। इन इंग्लैंड देयर वॉज अ रूल दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर रिगार्डेड एज वन, एंड इन एन एक्शन फॉर लिबेल डिस्क्लोजर बाय हस्बैंड ऑफ लिबेल टू हिज वाइफ इज नॉट पब्लिकेशन। वो पब्लिकेशन नहीं माना जाता। ऑलराइट, बट इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ there is no presumption of law that a husband and wife constitute one person for the purpose of criminal law. Therefore, the English common law doctrine of absolute privilege cannot prevail in India. अब देखिए मैं थोड़ा 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के पॉइंट पे जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे डिफेमेशन और ये थोड़ा ओवरलैप करता है, क्योंकि केस था एक MC वर्गीस वर्सेस TJ पॉन्नन। अब इसमें क्या हुआ था कि वर्गीस हैज़ कंप्लेन दैट ही वॉज डिफेम्ड बाय 3 letters विच पॉन्नन रोट टू राठी पॉन्नन उसकी वाइफ थी, और उस लेटर में MC वर्गीस के खिलाफ चॉइसेस्ट ऑफ अब्यूजेस थी। अब हुआ क्या था, लेटर तो वाइफ को लिखे गए थे, मिल गए MC वर्गीस को, तो वहाँ पे एक 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का भी इशू आ गया था। 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा कवर करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि डिफेमेशन की बात कर रहे हैं तो डिफेमेटरी एस्पेक्ट पे ही थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पोजीशन रिकग्नाइज़ की थी कि अगर 2 लोगों के बीच में लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं और लेटर सपोज उसमें डिफेमेटरी कंटेंट है रिलेटिंग टू थर्ड पर्सन, और वो उसको कैसे भी मिल गया, then regardless it was not addressed to that third person or not, it would still be covered within the expression publishing, क्योंकि अगर एक बार defamatory imputation publish हो गया अगर वो written form में, तो that would be covered, definition satisfy हो जाएगी 499 की, and the person can be accordingly be held liable। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब MC वर्गीस वर्सेस TJ पॉन्नन को अक्सर लोग डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे कन्विक्शन हुआ था। ये केस कन्विक्शन या एक्विटल का नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ट्रायल कोर्ट था, मैजिस्ट्रेट जो था, मैजिस्ट्रेट ने ये देखा कि लेटर्स MC वर्गीस को एड्रेस थे ही नहीं, तो ये तो सिर्फ वाइफ को एड्रेस थे, तो अगर वाइफ को एड्रेस थे तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, है ना। तो अगर वो वहाँ के उसमें आता है तो MC वर्गीस हैज़ नो लोकस स्टैंड है, उनको उसने वो जो मैटर था खारिज कर दिया। MC वर्गीस सेशंस कोर्ट पहुँचे, सेशंस कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर हटाया, पर हाई कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर रिस्टोर कर दिया डिस्चार्ज का। और डिस्चार्ज का ऑर्डर जब रिस्टोर कर दिया तो ये पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैटर था कि ये ट्रायल प्रोसीड करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैटर ट्रायल प्रोसीड करने का था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ की, उसने कन्विक्ट या क्विट नहीं किया, उसने बोला कि हाँ अब यहाँ पे ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल में आप एविडेंस दीजिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो केस है, यहाँ पे कन्विक्शन या क्विटल नहीं हुआ था। दिस वाज अ केस रिलेटिंग टू सेटिंग असाइड ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज एंड अ डायरेक्शन फॉर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज एंड प्रोसीडिंग विद द ट्रायल, उसको लेके डायरेक्शन था। इस केस में एक और इशू था, वो मैरिज से रिलेटेड था, बट दैट इज़ इररिलेवेंट राइट नाउ। जब हिंदू लॉ में आएंगे और तब फैमिली लॉ में आएंगे तब डिस्कस करेंगे। अब पब्लिशिंग से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पब्लिशिंग एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है सेक्शन 499 की डेफिनेशन में, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेक्स और पब्लिशिंग है। तो जिसने बनाया डिफेमेटरी मैटर वो तो लायबल है ही, उसको पब्लिश करने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो ऑथर हो, ठीक है, वो भी लायबल हो जाएगा। तो आप ऐसा मत अज्यूम करके चलिएगा कि जो ऑथर है वही पब्लिश करेगा तो वो लायबल होगा। जैसे मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ, इलस्ट्रेशन से आप आराम से समझ लेंगे। एक जर्नलिस्ट है, वो लेटर सपोज किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बहुत ही एकदम डिफेमेटरी चीज़ें लिख देता है विच इज़ अनट्रू। अब जब वो अनट्रू है
तो जो पॉलिटिशियन है डिफेमेशन का केस लगाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑथर ऑफ डिफेमेटरी मैटर कौन है? जर्नलिस्ट। लेकिन इस केस में एक और पार्टी लायबल होगी अगर ये मैटर न्यूज़पेपर में छपा है। कौन? एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। जिस न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट काम करता है, जहाँ पे उसने वो आर्टिकल लिखा और जिस न्यूज़पेपर में छपा, उसका एडिटर भी लायबल होता है। क्यों? क्योंकि एडिटर ने पब्लिश किया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दैट the person who publishes the imputation need not necessarily be the author of the imputation. The person who publishes and the person who makes an imputation are alike guilty. ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको एक और बात बता दूं कि कोर्ट में एक फॉल्स पिटिशन फाइल करना या फॉल्स केस फाइल करना इज ऑल्सो डिफेमेटरी। दिस इज ऑल्सो डिफेमेटरी। ये भी डिफेमेशन की डेफिनेशन में आएगा। ऑलराइट, दिस विल ऑल्सो बी कवर्ड। क्यों? द मोमेंट यू हैव फाइल्ड इट वुड बी पब्लिश्ड। पब्लिकेशन की डेफिनेशन में रहेगी। थर्ड पर्सन में भी आ गया, थर्ड पर्सन भी उसको देख रहे होंगे। तो अगर थर्ड पर्सन देख रहे हैं, आपके जजेस देख रहे हैं, कोर्ट क्लर्क देख रहा है, रजिस्ट्री में ऑफिसर्स देख रहे हैं, पब्लिशिंग की कैटेगरी में आ गए, थर्ड पर्सन आर इन्वॉल्व, मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर आप अफेक्ट करेंगे या डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। कास्ट कॉलिंग या saying that the body of a person is in a loathsome state, etc. etc. तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि फॉल्स फाइलिंग ऑफ केसेस भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आ सकता है। मॉडर्न एरा का एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ आपको कि एक आदमी अगर इंटरनेट पे लेट अस सपोज आप ही के खिलाफ डिफेमेटरी आर्टिकल्स लिखने लगे, पब्लिश हो गया वो द मोमेंट इट इज़ पोस्टेड ऑन अ ब्लॉग के नीचे मान लीजिए कोई आपके खिलाफ एक ख़राब कमेंट कर दे, ठीक है, विच इज़ डिफेमेटरी, वो भी पब्लिशिंग की कैटेगरी में आ गया, ही इज़ ऑल्सो लाइबल। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है जो प्राइम टाइम पे आता है और फिर प्राइम टाइम में आने के बाद आपके खिलाफ लेट अस सपोज डिफेमेटरी मैटर बोलता है, ही इज़ ऑल्सो लाइबल। ऑलराइट, वो भी लाइबल हो जाएंगे। सो ये मोटा मोटा आपका डिफेमेशन का लॉ है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इनोवेंडो। इनोवेंडो के बारे में मैं थोड़ा आपको बता चुका हूँ, एक और थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब देखिए सारे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, ये इतना एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, इसी वजह से ये मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि नॉलेज एक्स्ट्रा होगी तो आपका अर्निंग के मेथड्स और बढ़ जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेयर द स्टेटमेंट्स do not refer to the complainant directly, the doctrine of innuendo can be pressed into service for the purpose of showing that the complainant was the real target of the attack। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इन्वेंडो में कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं होता, उसमें सार्केज़म या आयरनी होती है ना। तो कोर्ट्स इन्वेंडो तब यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द रियल मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ऐसे में कंप्लेनेंट को कुछ एडिशनल फैक्ट्स बताने होते हैं कोर्ट को कि वो दिखा सके कि किस तरीके से जो वो बता रहा है कि ये स्टेटमेंट मेरी तरफ डायरेक्टेड है, उन वर्ड्स की स्पेशल मीनिंग क्या है। सो एक ट्रू इन्वेंडो एक ऐसा इन्वेंडो होता है बाय विच द प्लेंटिफ एलेजेस अ स्पेशल डेफेमेटरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर ऑर्डिनरी मीनिंग एंड अराइजिंग बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्ट्स और बाय द मैटर्स नोन टू रिसिपिएंट्स। अब इस पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका आपको मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि मान लीजिए एक ग्रुप है, उस ग्रुप ने अपने से ही एक कोड वर्ड इस्टेब्लिश किया है। अब उस कोड वर्ड का मतलब लेट अस सपोज इट्स अ वेरी वाइल्ड अब्यूज़। अगर वो कोड वर्ड बोलेगा तो सबको इमेजिन कर लेना है कोई वाइल्ड अब्यूज़। अब वो सोचे वो आपके ही खिलाफ बोल रहा है ना, तो कोड वर्ड का कोई कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं। अगर लेट अस सपोज द कोड वर्ड इज आई विल से B-3, B-3 एक कोड वर्ड है। अब B-3 का कोड वर्ड आप किसी भी अब्यूज़ को इमेजिन कर लीजिए, अब वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। आपको पता है कि उस सर्कल में जो लोग मूव कर रहे हैं उसमें B-3 का मतलब क्या है। तो आप जब डिफेमेशन का सूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेंडो या प्रोसिक्यूशन करेंगे तो तब आप
क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट से? आप कह रहे हैं ये जो B-3 है ये एक्चुअली में वो अब्यूज़ है जो आप बताना चाह रहे हैं और ये आप ही की तरफ डायरेक्टेड है। तो आपको कोर्ट को कुछ एडिशनल फैक्ट्स दिखाने होंगे, ठीक है, कि उस B-3 की स्पेशल डेफिनेशन क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है और कैसे वो आपसे रिलेटेड है। तो ये सर्कमस्टेंसेस आपकी प्लीडिंग्स में कोर्ट को दिखने चाहिए, ठीक है, दैट हैज़ टू बी देयर एंड देन यू हैव टू लीड सम एविडेंस ओवर इट। एक बार ये हो गया तो इन्वेंडो साबित हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जजेस को, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, इन लोग के पास थोड़े स्पेशल प्रोटेक्शन होते हैं, ठीक है। जजेस के पास जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है, एमपीज़ के पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, और जजेस के पास सेक्शन 77 ऑफ द आईपीसी एज वेल है, विच इज़ नथिंग इज़ एन ऑफेंस व्हेन डन बाय अ जज एक्टिंग जुडिशली। तो मान लीजिए जज है, विटनेस को एग्जामिन करते वक्त कुछ रिमार्क्स दे देता है, कहता है आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, यू आर लाइक दिस और दैट। लेट अस सपोज ही मेक्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स अगेंस्ट अ विटनेस, डिपेंडिंग ऑन वन व्यू और द अनदर। तो क्या वो डिफेमेशन में आएगा? नॉट क्वाइट, क्योंकि द प्रिविलेजेस ऑफ द जजेस, द पावर्स ऑफ द जजेस गिव देम स्पेशल प्रोटेक्शन। वैसे ही अगर मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर एमपीज डिफेमेटरी मैटर एलेज कर रहे हैं, तो देखिए वो डिफेमेशन में नहीं आएगा, वो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में आएगा, वो ऑटोमेटिकली डिफेमेशन में नहीं आ सकता। पार्लियामेंट के अंदर थोड़े रूल्स अलग होते हैं। अब वो अपने आप में बहुत अलग सा डिस्कशन है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं। अभी मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का टॉपिक है, यहाँ पे शुरू हो गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिमिलरली एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने काउंसिल से मान लीजिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने लॉयर से बात कर रहे हैं, और लेटर सपोज अपने लॉयर से बात करते हुए किसी और पर्सन के खिलाफ खूब सारे डिफेमेटरी स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या यू आर लायबल फॉर डिफेमेशन? द आंसर इज़ नो, because the counsel has no separate existence from the client in the matters relating to legal duties. Communication to the counsel is a communication to the client, and communication to the counsel is also a privileged communication under the Indian Evidence Act section 126, ठीक है। Similarly, communication with one's counsel for legal advice is also not a publication, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और आई थिंक दिस इज़ इट। एक और सीआरपीसी का आपको छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कि आप डिफेमेशन के चैप्टर को सेक्शन 199 ऑफ द सीआरपीसी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज राइट 199 सीआरपीसी। ऐसे जब आप आंसर लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि आपने सीआरपीसी और आईपीसी मतलब इंटरलिंक करके बताइए। आपको 199 एक्सप्लेन नहीं करना है जब डिफेमेशन का आंसर दे रहे हैं, बस मेंशन कर देना है कि कोर्ट कॉग्निजेंस तब लेगा जब 199 में जो पर्सन अग्रीव्ड है वो कंप्लेंट करे, ठीक है, या 199 में और भी पैरामीटर्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को ये दिख जाता है यू आर अवेयर अबाउट दैट सेक्शन। तो आप जब इंटरलिंकिंग करते हैं यू फेच हायर मार्क्स देन अदर्स। और जब आप आर्ग्यू कर रहे होते हैं कोर्ट में एंड यू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेसिटी टू इंटरलिंक, देन द जजेस आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद योर नॉलेज। और अगर जजेस इंप्रेस होंगे आपके नॉलेज से तो आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत बढ़ती है। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। डिफेमेशन का लॉ आपका हो गया। बाकी सेक्शन 500 है आईपीसी का, उसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 500 में। आई थिंक यू पीपल कैन रीड बाय योर सेल्फ। 500 में है क्या, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच may extend to 2 years और फाइन और विद बोथ, यही बात है। 501 में है whoever prints or engraves any matter knowing or having a good reason that such matter is defamatory of any person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years fine or with both। तब आता है आपका फाइनली सेक्शन 502 सेल ऑफ प्रिंटेड और engraved substances containing defamatory matter। whoever sells or offers to sell any printed or engraved substance containing defamatory matter knowing that such matter contains a defamatory matter, वही सेम सेंटेंस। तभी मैंने बोला था dissemination of a defamatory matter is as much punishable as the publication or the authoring of defamatory matter, ठीक है। बेचना भी उतना ही पनिशेबल है और स्प्रेड करना भी उतना ही पनिशेबल है।
प्रोवाइडेड कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि उसके अंदर डिफेमेटरी मैटर है. सो दैट इज़ इट. आपका डिफेमेशन का लॉ हो गया आराम से. एंड आई थिंक टुमारो वील ट्राई टू डू सेक्शन 493 to 498A. ठीक है. So that is it for today. I'll see you tomorrow.